ہمارے لیے خدا کی زندہ پاک کلام میں سے آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا ہمارے خدا یسوع مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے 11ویں آیت مقدسہ تک تلاوت کی جائے گی اور تلاوت کرنے میں رہنمائی بنا کریں گے۔ مشرق جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت متی کی انجیل اس کا چوتھا باب 1 تا 11 آیات۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور 40 دن اور 40 رات پاکا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والی نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کی زندہ پاک کلام میں سے آج جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں سے آج ہم یسوع مسیح کے روزے کے متعلق اور یسوع مسیح کی آزمائش کے متعلق سیکھیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ انسان کی زندگی میں کام کرتی ہیں۔ اس حوالے کے اندر مقدس متی رسول جو یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے تھا، محصول لینے والا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اسے چنا اور اپنے پیچھے کھو لینے کو کہا اور تب سے یہ یسوع کے ساتھ چل پڑا اور اسے رسول ہونے کا فضل حاصل ہوا۔ مقدس متی رسول اپنے انجیلی بیان میں جو یسوع مسیح کی بابت ہے، یہ یسوع کو بطور بادشاہ اس انجیل کے اندر، اس انجیلی بیان کے اندر وہ یسوع کو بطور بادشاہ پیش کرتا ہے اور ہر حال میں بتاتا ہے کہ یسوع کس قدر عظیم بادشاہ ہے۔ یسوع کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی جیسی نہیں، دنیا کے حکمرانوں کی طرح وہ ایسا حکمران نہیں ہے، وہ عظیم بادشاہ ہے۔ اور یہاں پر یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع کے شاگرد یسوع کے ساتھ نہ تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر اس بیان کو، اس واقعے کو جو یسوع مسیح کی آزمائش سے متعلقہ تھا، یسوع نے اسے بائبل مقدس کے اندر درج کروایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مقدس متی، مقدس مرکز اور مقدس لوکا تینوں نے یسوع مسیح کی اس آزمائش کے متعلق اپنے انجیلی بیان کے اندر تحریر کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع آزمایا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سب سے پہلے بپتسمہ پایا ہے اور بپتسمہ پانے پر 3 کام ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اس کے لیے آسمان کھل گیا، دوسرا کام یہ ہوا کہ روح القدس کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر اترا اور تیسرا کام یہ ہوا کہ آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ آواز
بائبل مقدس کے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آواز اس وقت یوحنا نبی کے علاوہ شیطان نے بھی سنی، اس لیے جب روح القدس یسوع مسیح کو جنگل میں یعنی بیابان میں جب یسوع مسیح کو لے گیا تو لکھا ہے کہ وہ اس لیے تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اسکالرز کہتے ہیں، بائبل مقدس کے اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگل، یہ بیابان اس وقت شیطان کے ہولڈ کا ایک گڑھ تھا، جہاں پر شیطان کا مکمل قبضہ تھا۔ اسی جگہ پر جا کر یسوع مسیح آزمائے گئے۔ مقدس مرکز بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جنگل کے اندر جنگلی جانوروں کے ساتھ اس دورانیے میں رہے، اور لکھا اس نے 40 دن تک فاقہ کیا۔ فاقہ روزہ، خاکساری، عاجز ہونا، یہ بائبل مقدس کے اندر الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اور فاقے کرنے کا مطلب روزہ ہے۔ یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ اب ان 40 دنوں میں بائبل کہتی ہے ابلیس اسے آزماتا رہا، ابلیس اسے آزماتا رہا۔ بائبل میں لکھا ہے 4 باب کی 3 آیت، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ سب سے پہلی بات، خدا کبھی بھی کسی کو نہیں آزماتا۔ ہم کبھی کبھار سمجھتے ہیں خدا کی طرف سے ہم پر آزمائش آئی ہے، خدا ہمیں آزماتا ہے۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کسی شخص کو مجبور کرنا کہ شاید وہ گر بھی پڑے۔ آزمائش جس کے لیے دوسرا لفظ امتحان استعمال کیا جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے جب ہم مقدس یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، یعقوب کے خط کے پہلے باب کی جب ہم 12ویں آیت مقدسہ سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ آمین۔ بائبل کہتی ہے، مقدس یعقوب بیان کرتے ہیں اپنے خط میں کہ خدا کبھی کسی کو نہیں آزماتا، اس لیے جب کوئی آزمایا جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کبھی کسی کو آزمائش میں نہیں لاتا، لیکن خدا آزمائش میں پڑھنے ضرور دیتا ہے تاکہ بائبل کہتی ہے ہم کامل ہو جائیں۔ ہم پر وہ مصیبت اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ اس مصیبت میں آ کر ہم پختہ ہو جائیں، کیونکہ لکھا ہے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے ایمان اور ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس آزمائش سے ہمیں ایمان اور بڑھتا ہے اور ہم ایمان میں اور زیادہ گہرے طور پر پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں، چاہے کوئی شخص کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، خدا کا خادم یا کلیسیا میں سے کوئی، اگر اس پر مصیبتیں نہ آئیں، آزمائشیں نہ آئیں، تو شاید وہ جلد ہی اپنے خدا کو بھول جائے گا۔ اور انسانی فطرت کچھ ایسی ہے کہ جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں ہم خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں زیادہ جھکنا پسند کرتے ہیں۔ شاید پہلے ہم اتنا اچھے طور پر دعا نہ کرتے ہوں، لیکن جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم ہاتھ بلند کر کے آنسوؤں کے ساتھ خدا کی حضوری میں دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور خدا اسی لیے کبھی کبھار ہمیں آزمائش میں پڑنے دیتا ہے تاکہ اس سے ہم پختہ ہو جائیں، ہم خدا کی حضوری میں بڑھیں۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے کہ وہ آزمایا گیا، 40 دن تک ابلیس اسے آزماتا رہا، اور آزمانے کے پہلے الفاظ اس کے یہ تھے، کیونکہ شیطان نے سنا کہ خدا باپ نے خود اسے بیٹا کہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے
अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है। आजमाइश वो चीज है जो आपके लिए दरवाजे होने के बावजूद सब दरवाजों को बंद कर दे। आजमाइश वो चीज है जो इतने रास्ते होने के बावजूद आपको कोई भी रास्ता इख्तियार ना करने दे, और आपके लिए सब रास्ते, सब दरवाजे, सब उम्मीदें आपको बिल्कुल अनदेखी नजर आए। आजमाइश ये है, लेकिन आजमाइश में दुआ के साथ रोजा वो कामयाबी की कुंजी बन जाता है जो हमारे लिए हर एक बंद दरवाजे को खोल देता है, हर एक बंद रास्ते को हमारे लिए खोल देता है। जब जब ईमानदारों ने रोजा रखा है, उन्होंने खुदा के गहरे फजल को देखा है, उन्होंने खुदा के बड़े अजायब को देखा है। चाहे वो रोजा 1 दिन का हो, 3 दिन का हो, 14 दिन का हो, 21 दिन का हो, या फिर 40 दिन का एक रोजा। जब जब ईमानदारों ने मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ औकात पर, मुख्तलिफ हालतों में, मुख्तलिफ तरह की मुसीबतों में पढ़कर रोजा रखा है, उन्होंने खुदा का बड़ा जलाल देखा है। यीशु मसीह जैसे ही दुआ रोजे में ठहरे हैं, इब्लीस आजमाने के लिए आ गया है, इब्लीस आजमाने के लिए आ गया है। और लिखा 40 दिन तक, जब तक यीशु मसीह दुआ रोजे में रहे हैं, वो लगातार आजमाता रहा है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि आजमाया और फौरी तौर पर चला गया, हरगिज नहीं। लिखा 40 दिन तक इब्लीस उसे आजमाता रहा। मैं ये समझता हूँ बास टाइम लोग ये बात कहते हैं, हम दुआ में ठहरे हैं, हम रोजे में ठहरे हैं, तो खुदा की हुजूरी हम पर आ गई है। जी बिल्कुल, खुदा की हुजूरी हम पर आती है, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि खुदा की हुजूरी आए, इससे पहले आजमाने वाला आता है, यानी शैतान। ये शैतान का खिताब है, उसका एक नाम है। बाइबल मुकद्दस के अंदर शैतान के मुख्तलिफ नाम हमें मिलते हैं, जिसके अंदर शैतान, शरीर, इब्लीस, आजमाने वाला, ये उसके नाम है। और आजमाने वाला शैतान है। जब हम दुआ करते हैं इन दिनों में, क्योंकि बुध वाले दिन से रोजों का अयाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रोजा रखेंगे। आप मत ख्याल कीजिए कि जब आप रोजा रखेंगे तो खुदा की हुजूरी आप पर सबसे पहले आएगी। सबसे पहले आजमाने वाला आएगा और आकर आपको आजमाएगा। यहाँ पर लिखा है, यीशु को भूख लगी और वो कहता है इन पत्थरों से क्या है, अगर तू खुदा का बेटा है साबित कर, खुदा ने तुझे बेटा कहा है, अब तू ये काम करके साबित कर दे कि वाकई तू खुदा का बेटा है। यीशु को ये बात साबित करने की जरूरत ना थी, क्योंकि रसूलों ने खुद उसे खुदा का बेटा कहा है, अंबिया कराम ने उसे खुदा का बेटा कहा है, फरिश्तेगान ने उसे खुदा का बेटा कहा है, और खुद खुदा बाप उसे कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है। तो जब इतने सारे गवाह हो, यीशु को इस बात को साबित करने की जरूरत है कि वो खुदा, उसके काम बताते थे, उसकी कुदरत बताती थी, उसकी अलूहियत बताती थी कि वो खुदा ताला का बेटा है। इसलिए शैतान भी एक वक्त आया कि वो इकरार करने पर मजबूर हो गया और कहता है तू खुदा ताला का बेटा मसीह। यहाँ पर जब वो कहता है आकर कि इन पत्थरों से क्या है, रोटियां बन जाए, यीशु ने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। और साथ में हवाला भी वो देता है, हवाला कुछ यूं देता है, यहां पर कहता है तो इन पत्थरों से क्या है कि रोटियां बन जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि फौरी तौर पर यीशु मसीह ने इस्तिस्ना की किताब के 8वें बाब की 3री आयत मुकद्दसा से उसे जवाब दिया है। ये हवाला कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, ये हवाला खुदा यीशु मसीह ने इस्तिस्ना की किताब में से शैतान को दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। याद रखें, हमें उस वक्त में जिस चीज से हम परहेज कर रहे होते हैं, शैतान हमें उसी चीज की तरफ वर्गलाने की कोशिश करता है। आदम और हवा को मना किया गया था,
उस फल को ना खाना, लेकिन वो फल बाइबल कहती है हवा ने जब उस फल को देखा तो वो फल उससे बड़ा खुशनुमा नजर आया। खुदा जिस चीज से हमें रोकता है वो चीज हमें बड़ी खुशनुमा नजर आती है। और ठीक ऐसे ही जब हम रोजे में ठहरते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि फौरी तौर पर हमारा खाने की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ जाता है, हमें उसकी ज्यादा लज्जत महसूस होती है। और जब आपके साथ ऐसा हो, आप जान लीजिए कि आजमाने वाला आपको आजमा रहा है और वो चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में गिर जाएं, क्योंकि जिस राह पर आप चल पड़े हैं दुआ और रोजा, इससे आप खुदा के मसा में, उसकी हुजूरी में, उसके जलाल में, उसकी कुर्बत में आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए वो चाहता है कि वो आपको रोकने के लिए उन बातों की तरफ मुतवज्जे कर दे जिससे आप खुदा की हुजूरी में ठहर ना पाए। यहाँ पर इब्लीस उसे कहता है कि तू इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जा। तुझ में खुदा की सारी अलूहियत काम करती है, अलूहियत की सारी मामूरी तुझ में सुकूनत करती है, लिहाजा तो पत्थरों से कहेगा पत्थर रोटियां बन जाएंगे, खुद भी खा लेना। और बनी इस्राएल कौम का हाल कुछ यूं था, रोमी हुकूमत के दौरानिये में बनी इस्राएल कौम पर बड़े जुल्म हुए और उसमें से अहम बात यह थी कि बनी इस्राएल कौम ने गुर्बत का बहुत ज्यादा सामना किया है। रोटी के लिए वो तरसते थे, भागते थे। वो यीशु मसीह को ये कहना चाहता है तू जिस सफर के लिए निकला है, जिस खिदमत को सरंजाम देना चाहता है, उसमें शरीर का मकाम भी है, उसमें जान देना भी है। तू जान देकर लोगों को अपनी तरफ ना खींचना, बल्कि वो रोटियों के भूखे हैं, इन पत्थरों से क्या है रोटियां बन जाए, वो सब तेरे पास आ जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हमारे लिए भी ये बात है और अहम है। खुदा का कलाम ये रूहानी रोटी है, इसे भी हासिल करना अपनी जिंदगी में जरूरी है। और इससे मुराद हरगिज ये नहीं कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि रोटी जरूरी नहीं है, रोटी खाए खाने के लिए है, लेकिन अहम चीज ये है रोटी सिर्फ हमारे बदन को तकवीयत देती है, लेकिन हमारी रूह को जो चीज तकवीयत देती है वो खुदा की आवाज, उसका कलाम है, उसका कलाम है। आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसलिए मैं आपसे ये बात, कभी कभार हम शैतान का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ते हैं और कहते हैं हम उससे डरेंगे नहीं, हम उससे हरा देंगे, लेकिन हराने के लिए आपको खुदा के कलाम से मुतारिफ होना पड़ेगा। अगर ये कलाम आपके अंदर नहीं है तो आप कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसे हरा नहीं सकते, क्योंकि यीशु ने फिर उसे बताया है कलाम मुकद्दस में से कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। उसके बाद फिर लिखा है 5वीं आयत में, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के गंगोरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। फिर शैतान ने यीशु को आजमाया और कहता है मुकद्दस शहर यानी यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगूरे पर यीशु को खड़ा कर दिया। बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स कहते हैं ये वो जगह है हैकल का कंगूरा जिसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा पुलपट था, जहां पर सिर्फ सरदार काहिन आजम साल में एक बार जाया करता था। वो कहता है ये जगह, ये मकाम जिस जगह पर वो यीशु को लेकर गया है, वो कहता है यहां से अपने तई नीचे गिरा दे, इतनी ऊपर से लोगों की नजरें तेरी तरफ हो जाएंगी, लोग तेरा दीदार करेंगे, लोग तुझे देखेंगे, तू लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा, ऊपर से अपने तई नीचे गिर जा और वो तेरी बाबत लिखा है। अब शैतान भी बाइबल मुकद्दस में से हवाला दे रहा है। कभी कभार हम कहते हैं हमें बड़ा कलाम आता है, लेकिन याद रखे शैतान भी बड़ा कलाम को जानता है, लेकिन कलाम पर वो अमल नहीं करता।
हवाला जात वो भी बहुत ज्यादा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 91 की 11वीं आयत मुकद्दसा को यहाँ पर उसने दोहराया है और वो कहता है कि लिखा है, ज़बूर नंबर 91 की 11वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि तू अपने सही नीचे गिरा, फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और लोग इस चीज को देखकर बड़ा चर्चा तेरा करेंगे, लोग तेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि शैतान इन सारे हालात से, क्योंकि यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करने जा रहे थे और वो बताना चाहता है इन आजमाइशों से, जो जो बातें वो कह रहा है, इन बातों से वो ये चाहता है कि यीशु मसीह आसान खिदमत का चुनाव करे। आसान खिदमत जिसके अंदर रोटियां हो, लोग रोटियों के साथ आ जाएं। आसान खिदमत कोई ऐसा अजीब काम हो उनके सामने, अपने तई नीचे गिरा, फरिश्ते आकर तुझे उठा लेंगे, लोग तुझे हवा में जब देखेंगे इस तरीके से, लोग तेरे तरफ खींचे चले आएंगे। यीशु मसीह चाहते ऐसा कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह जानते थे इब्लीस है, आजमाने वाला है, आजमा रहा है, लेकिन मैंने इस पर गालिब आना है। और लिखा है, यीशु मसीह ने फिर उससे कहा कि ये भी लिखा है, और ये हवाला जो यीशु मसीह बता रहे हैं, ये इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा से यीशु मसीह बयान करते हैं, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा, खुदावंद की आजमाइश मत कर। हम कभी कभार जब दुआ रोजे में ठहरते हैं, किसी ने मुझसे कहा, पाजी साहब मैंने 40 दिन लगातार रोजे रखे और आखिरी दिन में मैंने ये बात कही, अगर खुदा वाकई तो मुझसे प्यार करता है तो आज मेरी जिंदगी में ये काम कर दे, मैं मान लूंगा कि तू मुझसे प्यार करता है। मैंने उनसे ये बात कही, क्या खुदा की मोहब्बत का इजहार इस बात में काफी ना था कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और उससे यीशु ने तेरी खातिर मेरी खातिर अपनी जान सली पर दे दी। अब भी मोहब्बत के इजहार में कुछ बाकी है। खुदा की मोहब्बत पर गौर कीजिए। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में खड़े, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि हमें छोटी सी कुछ चीज चाहिए, खुदाम तूने क्योंकि ये बात मुझे नहीं दी, ये चीज मुझे नहीं दी, मेरी इस दुआ को कबूल नहीं किया, मेरी इस दुआ का जवाब जल्दी मुझे नहीं मिला, लिहाजा तू मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा कहना हरगिज गलत है, ये खुदा को आजमाने वाली बात है। खुदाम को इन बातों से मत आजमाएं। खुदाम देख, मैं तो आज चर्च भी गया था, मैंने तो दुआ भी की थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा जैसा मैं चाहता था, मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ, लिहाजा तुम मुझसे प्यार नहीं करता। खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता। लिखा है, खुदाम कहता है, बनी इस्राएल कौम के लोग कहने लगे, यहोवा ने हमें तर्क कर दिया, उसने हमें छोड़ दिया। खुदाम कहता है, क्या ये मुमकिन है कि एक माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो तो उसे भूल सकती है, वो तो उसे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ना छोड़ूंगा, मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना हूं। खुदाम कहता, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। इसलिए खुदाम हमेशा उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी काबिलियत, उसकी कुदरत, उसका जलाल हमेशा यकसा है। खुदा कभी बदलता नहीं। इसलिए खुदाम को मत आजमाए इन बातों से कि खुदाम ने ये चीज मुझे नहीं मिली तो तुम मुझसे प्यार नहीं करता। मुकद्दस दाऊद ने जब हित्तियुरैया की बीवी को ले लिया, तो उसके बाद अब वो अपने उस बच्चे की सलामती के लिए रोजे में ठहरा हुआ है, रोजा रखकर दुआ कर रहा है, लेकिन वो खुदा उसे कुछ सिखाना चाहता था। वो दुआ इस चीज के लिए कर रहा है कि वो बच्चा महफूज हो जाए, वो ना मरे, लेकिन फिर भी वो मर गया। दाऊद को जब इस बात का पता चला तो मुकद्दस दाऊद ने फौरी तौर पर क्या किया, उसी वक्त उठा है और उसने खाना खाया, रोजा खोल लिया। लोगों ने पूछा ये क्या? उसने कहा जब तक वो था तो था, अब वो क्योंकि मर गया है लिहाजा इस चीज की जरूरत नहीं।
मैं ये समझता हूँ हमें भी मुकद्दसताओं की तरह खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है। खुदा की मर्जी क्या है? हम कभी कभार अपनी मर्जी खुदा पर थोपते हुए खुदा को आजमाने की कोशिश करते हैं, और जब हम देखते हैं कि ये बात मुमकिन नहीं हुई, हम खुदा से नाराज हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करे। फिर लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब इस आजमाइश के अंदर वो ऊंचे मकाम पर लेकर गया है जहां से दुनिया की हर एक शान और शौकत यीशु मसीह को नजर आए, और वो कहता है तुम मुझे झुककर सिजदा कर तो ये तमाम दुनिया की सल्तनतें, ये सब कुछ, ये दुनिया की शान और शौकत सब मैं तुझे दे दूंगा। मैं ये कभी कभार कहता हूँ, आज बहुत सारे पासबान भी गुमराह हैं और वो समझते हैं मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा बंगला नहीं है, तो लिहाजा खुदा मेरे साथ नहीं है। हम बरकत इसी चीज को समझते हैं कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा बंगला हो, रुपया पैसा हद से ज्यादा हमारे पास हो, तो हम फिर कहेंगे खुदा हमसे प्यार करता है और हम पर मेहरबान है। ऐसा हरगिज नहीं। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, लेकिन जिंदगी कितनी सादा तरीन गुजारी है, बड़ी सादगी में गुजारी है। शायद यीशु मसीह कह सकते थे, मेरे सर पर, क्योंकि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मेरे पास खुदा बाप क्या है, मेरे सर पर एक ताज होना चाहिए, मेरा एक आलीशान तख्त होना चाहिए। यीशु जानता है कि ये सब कुछ पहले से ही खुदा बाप में मेरा है, ये सब चीजों का इख्तियार खुदा बाप ने मुझे दिया है, और वो इसका इकरार भी करता है। मत्ती की इंजील के आखिरी बाब में लिखा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु के पास है इख्तियार, और शैतान उसी इख्तियार को जता रहा है, अगर तू मुझे झुककर सिजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। जो पहले से यीशु का है वो यीशु को क्या और दे सकता है? शैतान के इख्तियार में वो चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आजमाए जा रहे हैं क्योंकि वो इंसानी बदन में है, यीशु मसीह मुजस्सम है और बदन में आजमाइश मुमकिन है। हम भी आजमाए जाते हैं और इस वक्त तक आजमाए जाएंगे इब्लीस से, हर रोज बल्कि आजमाए जाते हैं जब तक हम इस बदन की कैद में हैं। और मैं आपसे ये बात कहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात यीशु ने की। यीशु ने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सिजदा सिर्फ खुदा को वाजिब है, और अगर आप किसी को सिजदा कर रहे हैं, किसी को भी सिजदा कर रहे हैं, कोई कमर है, कोई स्टैचू है, कुछ भी है, तो सबसे पहले ये जरूर गौर कर लीजिए क्या वो खुदा है, क्योंकि बाइबल कहती है सिजदा सिर्फ खुदा को वाजिब है। तू सिर्फ, यहाँ पर लिखा, और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यहाँ तक कि हम गीत भी खुदा के ही गा सकते हैं, हम प्रस्तिश भी खुदा ही की कर सकते हैं। लिखा है सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। और जब ये बात, तो यीशु ने साथ में ये भी कहा, क्योंकि अब आजमाइश का वो वक्त जाता रहा, इब्लीस उसे बहुत आजमा चुका और यीशु मसीह इस टाइम में तकवीयत पा चुके, और अब यीशु मसीह कहते हैं, ऐ शैतान दूर हो। और लिखा है, देखो इब्लीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब शैतान पर हम गालिब आ जाते हैं, शैतान को हरा देते हैं, जब शैतान पर हम फतह पा लेते हैं, तो शैतान के जाने के बाद खुदा की प्रेजेंस हम पर आ जाती है। फरिश्तों का आना ये खुदा की हुजूरी का आना है, और लिखा फरिश्ते आकर उसकी क्या करने लगे? खिदमत करने लगे। बाइबल मुकद्दस के एक बड़े अजीम स्कॉलर हैं, खुदा के खादिम भी हैं, तो वो यहाँ पर ये बयान करते हैं, वो कहते हैं
کہ यीशु को भूख लगी थी। इब्लीस उससे कहता रहा, पत्थरों से क्या है, रोटियां बन जा, रोटियां बन जा, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह खुदा के जलाल के मुंतज़िर रहे। और कहते हैं कि उसके बाद जब यीशु मसीह इब्लीस की तमाम आजमाइशों पर गालिब आ गए और शैतान को हरा दिया, तो उसके बाद फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, यीशु को आकर खाना देने लगे। जो चीज यीशु मसीह चाहते थे वो यीशु के लिए, और खिदमत कर रहे हैं यीशु की। आज मैं ये समझता हूँ खुदा के फरिश्ते आज उन ईमानदारों की खिदमत के लिए भी हाजिर होते हैं जो लोग इब्लीस पर गालिब आते हैं। और बाइबल मुकद्दस को देखिए जरा, उन रोजों कि क्या जबरदस्त अंजाम मिलता है, उन रोजों का रिजल्ट क्या मिलता है। बनी इस्राएल कौम ने एक दिन का रोजा रखा, खुदा से बहाली और मुआफी को पा लिया। निनवा के लोगों ने रोजा रखा, खुदा से बहाली और मुआफी को पा लिया। मनी कास्टर ने 3 दिन का एक रोजा रखा और अपनी कौम को बचा लिया। मुकद्दस पौलुस रसूल ने 14 दिन का एक रोजा रखा और उस जगह पर कलीसिया कायम कर दी जहां पर यीशु का नाम लेना कोई गवारा ना करता था। दानियल नबी ने 21 दिन का एक रोजा रखा और आखिरी जमाने के भेद को समझ लिया खुदा से। मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का एक रोजा रखा और खुदाम से उसकी शरीयत को बनी इस्राएल कौम के लिए पा लिया। और जब हमारे आका, हमारे मुनज्जी, हमारे खुदाम यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा, तो यीशु ने शैतान को हरा दिया और जबरदस्त खिदमत का आगाज करते हुए यीशु ने दुनिया के लिए नजात के दरवाजे खोले। आज बात हमारी है, हम इन दिनों में रोजे रखेंगे। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो 40 के 40 पूरे रोजे रखते हो, लेकिन अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, उन 40 रोजों की, एक रोजे की या 40 रोजों की या जितने भी आप रखते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में क्या नजर आती है। अफसोस की बात यह है, ना हमारे खानदान में तरक्की नजर आती है, ना कलीसिया में, ना हमारे इलाके में, ना हमारी कौम में, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर भी तरक्की नजर नहीं आती, बहाली नजर नहीं आती, उस रोजे का रिजल्ट नजर नहीं आता। उसके पीछे वजह यह है, हम आजमाने वाले पर गालिब नहीं आते। आजमाने वाले पर गालिब नहीं आते। जब मैं छोटा था तो अक्सर औकात इस बात को देखा करता था, जब रोजा रखा होता था तो स्कूल के अंदर भी जाते वक्त जो दोस्त पहले कभी जल्दी चीज के बारे में पूछते नहीं थे, रोजे के टाइम में वो भी जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते थे थोड़ा सा। और मैं ये समझता हूँ उस वक्त इब्लीस ऐसी कोशिशें करता है और उसका सबसे बड़ा हथियार यही है, ईमानदारों की आजमाइश। और एक बात याद रखिए, रोजे की हालत में जिन जिन ईमानदारों का यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में से जिक्र किया गया है, जब उन्होंने रोजा रखा है तो वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते रहे हैं। रोजे के वक्त में वो खुदा की हुजूरी में झुकते रहे हैं। ऐ नहीं है रोजा रख के तो उस तो बाद घर बैठ जाना, घर का कोई काम भी ना करना, सो जाना। सोन वाला रोजा खुदा के सामने सोकर कारोबार, सिर्फ कारोबार 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 कारोबार। खुदाम को ऐसा रोजा पसंद नहीं। खुदाम चाहता है उस रोजे में आप जिससे तकवीयत पाना चाहते हैं, जिससे जोर पाना चाहते हैं, जिससे बरकत पाना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, सलामती पाना चाहते हैं, आप उसकी हुजूरी में तो आए, आप उसकी हुजूरी में तो ठहरे। लेकिन नहीं, इस सबब से हमें उस रोजे की बरकतें हासिल नहीं होती। आज मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए गौर तलब बात यह है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह आजमाए गए, हम भी आज आजमाए जाते हैं। इब्लीस हमें आजमाता है, और रोजा और दुआ की हालत में तो कुछ ज्यादा। शायद दुआ की हालत में जैसे हम दुआ करते हैं, शैतान हमारी कमजोरियों को जल्दी से पकड़ता है और वो देखता है। किसी को शायद नींद आना शुरू हो जाती है, किसी पर गनुदगी छा जाती है, शायद किसी को अपने घर के काम याद आना शुरू हो जाते हैं, किसी को अपना कोई अजीज याद आना शुरू हो जाता है। शैतान किसी ना किसी हाल में रोजे और दुआ और इबादत से हमारा ध्यान हटाता है और हम बड़ी आसानी से उसकी आजमाइश में फंस जाते हैं और गिर जाते हैं हम खुदा की हुजूरी में। जब भी ऐसा हो तो आप याद रखें कि आप आजमाए जा रहे हैं।
आप आजमाए जा रहे हैं। एक बीमार शख्स को, जो ज्यादा बीमार हो, वो भी आसानी के साथ 3 घंटे तो टीवी देख ही लेता है। चलो जी बीमार है, थोड़ा सा खुश करने के लिए एक मूवी लगा दी जाए। मूवी कितने टाइम की है? 2.5 से 3 घंटे की। बीमार को भी देख लेगा। चलो जी बीमार है, 10 से 15 मिनट दुआ कर ले। बीमार कहता जी सॉरी मुझसे नहीं बैठा जाएगा। 2 मिनट दी कर लो भाई साहब, 1 मिनट दी कर लो, मैंने फिर नींद आ जाती। ऐसा क्यों? आजमाने वाला आपको आजमाता है। जिक्रिया की किताब में जिक्र है इस बात का, एक तरफ काहिन के साथ खुदा का फरिश्ता है और दूसरी तरफ आजमाने वाला शैतान भी उसके साथ खड़ा है। हमें भी इसी तरीके से शैतान आजमाता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं गालिब आओ, जिस तरीके से मैं दुनिया पर, गुनाह भरी दुनिया पर गालिब आया हूं। आज हमने गालिब आना है, शैतान पर गालिब आना है। जब भी दुआ रोजे में ठहरे तो याद रखें, छोटी छोटी बातों में इब्लीस आपको आजमाएगा। आप दुआ करना चाहेंगे, वो आपको दुआ नहीं करने देगा, आपका ध्यान भटकाएगा। मैनुअल चर्च के अंदर जब मौजूद था और मैंने आगाज में मैं दुआ रोजे में ठहरता था ताकि मेरी खिदमत उस इलाके के अंदर बाइस बरकत हो, तो मैं दुआ के अंदर ठहरा होता था और मुझे इब्लीस शैतानी कुत्ते कभी कभार मेरी वालिदा की आवाज, कभी मेरी बहन की आवाज में उस जगह पर पुकारती थी कि एक बार आंखें खोल कर देख, हम इस वक्त बहुत बीमार हैं। मैं कहता था इस जगह पर वो कैसे आ सकते हैं, और वहां पर कोई नहीं होता था। शैतान इसी तरीके से हमें गुमराह करता है। कभी कभार जब आप दुआ करना चाहते हैं, आप दुआ करने वाले होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, आपके इर्द गिर्द कुछ है, शायद कोई आपको छू रहा है, शायद कोई आप पर हमला ना कर दे। आपको ये बात याद रखने की जरूरत है, एक ईमानदार होने के नाते हमें ये बात याद रखने की जरूरत है, हम खुदा की हुजूरी में हैं और वो कहता है मैं तेरी बाबर, तू जो दुआ में ठहरता है, मेरे हुजूर में रहता है, मेरे हुक्मों पर अमल करता है, मेरे कलाम के मुताबिक चलता है, मैं तेरी बाबर अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सजा हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज इन बातों पर गौर कीजिए। आप अगर दुआ में कमजोर हैं, रोजा रखते वक्त शैतान की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो आप याद रखिए वो आजमाने वाला है, वो आपको आजमाता है। गालिब आए, जिस तरीके से यीशु मसीह शैतान पर, गुनाह भरी दुनिया पर यीशु मसीह गालिब आए। आए अपनी आंखें बंद करें, अपनी सर पर